Hmm. Hello, evolution chapter number 4 zoology module. ठीक है. Evolution. Earth is full of animate and inanimate matter. The matter undergoes changes from time to time. This is the life history of a particular organism. But if we study the history of complete flora and fauna, plants, lot million, all the life forms like plant, animal, or microorganisms that we see around comprise of the biodiversity on Earth. These all life forms have a long history of changes, and the study of history of life forms on the Earth is called evolutionary biology. To understand the changes and the flora and fauna have occurred over millions of years on the Earth, we must have an understanding of context of life of origin of life, that is evolution of Earth, stars, and indeed of the universe itself. Meaning of evolution. Evolution means the act of unfolding or unrolling and simple change from one form to another. But before we learn about how organism evolved, we must have an understanding of how the organism originated. Therefore, before learning evolution of life, we must learn origin of life. Origin of life. Life is an inherent capacity that an organism possesses to maintain and reproduce itself. The origin or beginning of life is a unique event in the history of universe. Let us acquaint ourselves with the origin of the universe. Universe is a very vast and expanded large distances. इधर कुछ नहीं है. This is the reason when we look at the stars on a clear night sky, it is said that we are in a way looking back into the time, or we can say we see the stars. We apparently are peeing into the past. ठीक है. Origin of universe. Big Bang theory. Now important. Origin of universe has the most important was the most important phenomenon in the origin of life. Big Bang theory attempts to explain the origin of universe. This theory possesses that universe is very old and its origin took place about 20 billion years ago. 20 billion years साल पहले यूनिवर्स बना. 20 billion years ago यूनिवर्स. ठीक है. मैं लिखते भी जा रहा हूँ साथ साथ. It is said that a huge explosion, that is Big Bang, took place in the space, which was so powerful that it is unimaginable in physical terms. Today's explosion, the universe and volume and temperature of the space came down. Slowly, hydrogen and helium formed, which condensed due to gravitational forces present in the on the Earth. देखो बिग बैंग हुआ, फिर टेम्परेचर घटा थोड़ा, धीरे धीरे बहुत देर बाद फिर हाइड्रोजन हीलियम बना, और हाइड्रोजन हीलियम बना और फिर क्या एटमॉस्फेयर बना. This is all resulted in the formation of billions of galaxies, which are already discussed. In the solar system of Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years ago. This date is important. Earth was formed 4.5 billion years ago. अर्थ का डेट है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. बिलियन है, ठीक है. ओके. The gases envelop our atmosphere that was not present on the early Earth. Due to volcanic eruptions, the molten mass was released, which slowly covered the surface of the Earth. From this molten mass, various gases are released into surroundings like methane, ammonia, carbon dioxide, water vapor, etc. अच्छा, तो volcanic eruption से 4 गैस बना क्या? अपना वही मेन मीथेन और अमोनिया और CO2. ये इंपॉर्टेंट है, CO2 भी, और वाटर वेपर. हाँ. The UV rays present in the sunlight acted upon and broke the hydrogen and oxygen, and the lighter H2 escaped. Oxygen readily combined with ammonia and ozone to form H2O CO2 gases. अच्छा, तो पहले अमोनिया मीथेन बना ऑब्वियसली, और फिर बाद में CO2 H2O बना ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्या कहते हैं ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ H2O बाय यूवी रे. ठीक है. तो यूवी रे से एक CO2 और H2O मतलब बना है, और बाकी अमोनिया और अपना मीथेन उससे नहीं बना यूवी रे के कारण. ठीक है. Therefore, free oxygen like today's environment, जैसे अभी free oxygen मिलता है अपने हवा में, was not present on the early earth. Therefore, the early atmosphere was reducing, unlike today's oxidizing atmosphere. आज का जो atmosphere है वो oxidizing है. हाँ. और पहले नहीं था. पहले एक सेकंड, let me just check that recording हो रहा है कि नहीं.
ठीक है, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, सही है। दे हाँ ठीक है, हो तो रही है। यस, मेरे तो हाँ, H2O, CO2, etc. Oxygen also participated in the formation of ozone molecules due to action of UV rays on it. Oxygen also participated in the formation of ozone molecules due to UV rays, मतलब ऑक्सीजन पर काम किया यूवी रे और उसके बाद बना दिया ओजोन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो अपना these ozone molecules cluster to form ozone layer which is a shield to from the harmful UV rays. अच्छा, water vapor condenses to form water droplets as rain is slowly filled the depressions present on the surface of Earth, which is supposed to be the origin of life we see today. But during all this change, life took approximately, ये था कोई important question, ये सब जो भी changes हो रहा था, life took approximately 500 million years to appear, or we can say that life appeared approximately 500 million years after the formation of the earth, or almost 4 billion years ago back. तो लाइफ अपीयरेंस लिख सकते हैं हम लोग 4 बिलियन ईयर्स ago, ठीक है। 4 बिलियन बाई आर एस ए जी ओ। आगे चलते, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, नहीं केवल और केवल वेरी हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, very high amount of oxygen in the atmosphere, a very high amount of oxygen in the atmosphere. This is because oxygen is strong the inorganic materials present in the atmosphere. देखो क्या बोल रहा है, लाइफ क्यों नहीं अभी उग सकता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से, क्यों? क्योंकि अभी ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है एट में, इसको भी लिख लिया गया है एज अ पॉइंट। लाइफ कांट ओरिजिनेट from at present from inorganic materials now because now atmosphere is oxidizing and oxide बना देगा तो organic molecule नहीं बन पाएगा। thus now atmosphere is oxidizing, so oxides will be formed। और अपना केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ अभी नहीं हो पाएगा। द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट लाइकली एब्सेंट इन फ्री फॉर्म इन द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कौन सा प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के टाइम, ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम नहीं था? मोस्ट लाइकली अमोनिया, मिथेन तो था, रहा बात ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन तो बहुत पहले से, हाइड्रोजन हीलियम तो बहुत ही पहले से था, मतलब बिग बैंग के टाइम से 20 बिलियन ईयर्स वगैरह जो हुआ है। और बाकी ऑक्सीजन अपना बाद में आया था, साफ साफ लिखा हुआ है। Theories on the origin of life. Theory of special creation states that the life was created by supernatural power in the form which has not undergone any change. It is given by Father Soros. God created life and seeds from materium, पता नहीं जो भी है, and man was created by him on sixth day. According to this theory, Sunday is seventh day and छुट्टी। This theory, Earth is about 4000 साल old, क्योंकि Christianity जो theory of catastrophism was given by Cuvier, according to which after a gap of certain period called age, the world undergoes a catastrophe, sudden calamity which kills many of the species living at that time. He suggested that these periodic catastrophes were usually confined to lower regions which were later populated by species immigrating from other areas. तो ये important हो सकता है, theory of catastrophism, ठीक है, was given by Cuvier, अकॉर्डिंग टू विच गैप ऑफ सर्टेन पीरियड, वही बार बार टूट के बार बार बनता है, और मतलब एक बार ख़त्म होता है तो दूसरा उसको हड़प लेता है, इस तरह से अलग अलग स्पीसीज़ का थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अच्छा, अब आते हैं मेन थ्योरी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज लाइफ फ्रॉम लाइफ ओमनिस वाइवम एक्स विवो, ओमनिस वाइवम एक्स विवो, याद कर लो, आ जाए क्वेश्चन। अच्छा, थ्योरी सारा लिख सकते हैं, नाम तो लिख सकता हूँ ना मैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, theory of
catastrophism, theory of special creation, theory of catastrophism, theory of biogenesis. Theory of biogenesis मतलब omnis vivum ex vivo, ठीक है, given by Reddy Spallanzani Pasteur. नाम तो याद है मुझे, Spallanzani and Pasteur independently. They disproved या फिर refuted theory of spontaneous generation या फिर abiogenesis. Theory of spontaneous generation तुरंत आएगा अभी. Francisco Reddy proved that flies could not arise from the putrefying meat without their eggs. Spallanzani demonstrated that the putrefying of meat is due to the microbes in air and it can be prevented by boiling and sealing the meat in airtight containers. Pasteur gave a definite proof of life arising from pre-existing life. Using microbes and sterilization method, he performed swan neck flask experiment. Swan neck flask experiment. Cosmozoic theory, extraterrestrial origin of life. Extraterrestrial origin of life. Cosmozoic theory भी important ही है. Extraterrestrial origin of life. ये क्या कहता है पता ही है. Panspermia theory types. अच्छा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कौन था? फादर सोरेस. और थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म कुवियर, जो भी है, कुवेर जो भी है, कुवियर. फादर सोरेस और फिर कुवियर और अपना रेडी स्पेलेंजनी और पास्चर तो है ही है. कॉस्मोसोइक थ्योरी क्या था? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वही मतलब. Some scientists believe that life came on Earth from other stars or planets. Early Greek thinkers, Richter, Helmholtz, ये तो नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, said that Greek याद रख लो, that living organisms exist throughout the universe. Like we have our own Earth, many other planets have also their own living organisms, and that life was transferred from one planet to another in the form of some units of life called as spores or seeds or sperms. The transfer of spores was termed panspermia, suggested by Arrhenius in 1908. Panspermia states that life is present throughout the universe. Pan-complete 1908. इतना मॉडर्न में इतना बेवकूफ़ कोई कैसा दे सकता है इतना मॉडर्न एरिया में? अच्छा ठीक है. Panspermia states that life is present throughout the universe. Pan-complete transfer of life from one planet to another is called cosmozoic theory. Panspermia is still a favorite idea for some astronomers, but it has no scientific proof. Theory of spontaneous generation. अच्छा, इसका नाम रख सकते हैं वो ग्रीक कॉमा वो लिख दो, अरहेनियस, बस बहुत है. बाकी नंबर 5, theory of spontaneous generation. Spontaneous generation. The supporters of this theory stated that life did not come from outer space, rather it is a natural spontaneous generation of living organisms from. देखो, एक्चुअली तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नॉन लिविंग मैटर से ही आया है प्रैक्टिकली, टेक्निकली, लेकिन नेचुरल स्पॉन्टेनियस कैसे हो गया? धनाधन मतलब बनते जा रहा है. For example, they believe that the decayed and rotting material like mud, straw, etc. Spontaneous generation इसे तो नाम spontaneously. Mud, straw, etc. had the capacity for rock flies, etc. ठीक है. However, this concept was extremely fruitful. One of them, Louis Pasteur. Louis Pasteur, by careful experimentation, demonstrated that life comes only from pre-existing life. He showed that in pre-sterilized flasks, life did not arise from killed yeast, while in other open flask to air, new organism arose from the killed yeast. The theory of spontaneous generation was dismissed for once for all on this basis, but still there was no explanation as to how the first life came on the earth. But still there was no explanation. अभी तक जो भी पढ़े सब गलत है, मतलब प्रूफ नहीं आ पाया. ठीक है, गलत का तो नहीं पता. अभी छठा और सातवां इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा. ओपेरिन एक रशियन साइंटिस्ट था और हेल्डेन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था. हेल्डेन ब्रिटिश साइंटिस्ट था मगर बाद में इंडियन सिटीजनशिप ले लिया, पता नहीं क्यों. यही है बुक में दिया हुआ.
ठीक है. Operin held an hypothesis. Operin of Russia and Haldane of England proposed the first form of life could have originated from pre-existing non-living molecules, for example RNA, प्रोटीन etc. मतलब RNA प्रोटीन से आया होगा, ये बोला बस, और तो कुछ बोला नहीं. एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाई केमिकल इवोल्यूशन. ठीक है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये इंपॉर्टेंट लाइन था, पर ठीक है. हाँ, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा ये स्टेज याद रखना, नाम और इसका जो है एक्चुअली, जस्ट इन केस कन्फ्यूजन ना हो जाए. फ्री आइटम्स में कौन कौन सा है अपना, वही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन भी. फिर अपना वही जो चार वो है कंपाउंड, H2O, अमोनिया और CO2 है. ठीक है, ध्यान से, O2 नहीं है इधर कुछ वैसा. फिर है मीथेन, HCN एट्सेट्रा. ये इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, बस बता रहा है कि फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये मत सोच लेना कि सीधा शुगर अमीनो एसिड बन गया. ये सब से है, पहले ये सब कुछ कुछ बना और इस पर लाइटनिंग किया तब जाके ये बना. ठीक है, ये सब मतलब लाइटनिंग नहीं, मतलब ये पहले ये बना. फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है, यही ध्यान देना. फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये. फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो था ही जो अपना बना हुआ था. और ये जो फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, उसके बाद बनेगा अपना मेन सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उसके बाद एरो डाल के लिख दो, शुगर, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड. हाँ, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसिस एट्सेट्रा. सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे. फर्स्ट सिंपल है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक है. ठीक है, और इन सब के बाद आता है अपना कॉम्प्लेक्स शुगर, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, DNA RNA हो गया, और लाइफ फॉर्म्स. ये कॉम्प्लेक्स DNA और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. नाइस. और फिर उसके बाद लाइफ. चलो, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाज कॉल्ड टर्म्ड एज केमिकल इवोल्यूशन. Now the question arises, what was the stimulus that initiated the above discussed chemical reactions on the earth? Operin and Haldane proposed that the energy and the stimulus were provided to these reactions, that is chemical reaction, by conditions present on the earth, early earth, like क्या क्या है, obviously high temperature, ये important है ये तीनों पॉइंट. हाई टेम्परेचर, volcanoes, और reducing atmosphere containing methane, ammonia etc. Reducing atmosphere containing methane, ammonia etc. Early atmosphere was reducing, unlike the present oxidizing atmosphere, because it had no free oxygen. Early atmosphere was reducing, unlike today, because it had no free oxygen. Now, chemical evidence for the chemical क्या है, experimental evidence for the chemical evolution. ये जो experiment अब इसका है, उसका experimental evidence क्या है? ये तो ये लोग हाइपोथेसिस दे दिया कि इस तरह से बना होगा, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन से, ये चारों चीज़ से बना होगा. सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स और फिर लाइफ. मगर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है भाई, मतलब इसका प्रूफ क्या है? तो ये है अब भाई साहब हमारे एस एल मिलर, अमेरिकन है, ये ध्यान रखने का बात है. एस एल मिलर अमेरिकन है, ओपरिन रशियन है. ओपरिन रशियन है, हेल्डन इंग्लैंड ब्रिटेन टाइप है. ठीक है, और जो एस एल मिलर है वो अमेरिकन है अपना. ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट के इसमें पूरे चैप्टर में. लुई पास्टर तो पता ही है, बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय ओपरिन. और बाकी हाँ, फिर वो जो था फादर सॉरेस और आर्हेनियस और ग्रीक वाला, वो सब फालतू चीज़ भी है, याद रखना. कुवियर भी याद रखना है, कुवियर बार बार भूल जाते हैं लोग.
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द hypothesis provided by Operin and Haldane, SL Miller provided experimental evidence for the chemical evolution in हाँ ये भी ईयर भी इम्पोर्टेंट है 1933 in a laboratory created a similar exterior Miller sealed in a spark chamber mixture of H2O, ammonia, methane and hydrogen gas. जो चार चीज था उस सबको एक स्पार्क चैम्बर में ले लिया। स्पार्क चैम्बर, अच्छा ना, इसके एक्सपेरिमेंट में सारा टर्म पर बहुत मतलब उस पर क्वेश्चन आता है, टर्म क्या 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 चीज़ कहते हैं उसको, खाली क्लास नहीं याद रखना, याद रखना नाम भी है। वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक है। वाटर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइस। He made an arrangement for the insertion of two electrodes to provide electrical energy stimulation of lightning to spark chamber. Methane, ammonia, hydrogen were in the ratio 2:1:2. अब इसको कैसे याद रखना है कि रेशियो क्या है 2:1:2 वाला। तो देखो मीथेन है CH4 है, इवन नंबर है, इवन ऑड, दिल्ली का नंबर प्लेट से और इवन ऑड। तो हाइड्रोजन होता है 2, अमोनिया देखो NH3 है तो ऑड, तो 2:1:2, और अमोनिया में ऑड है, और मीथेन और H2 में अपना इवन है एट 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर वेपर भी था, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ 75,000 वोल्ट वॉज प्रोवाइडेड टू द मिक्सचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, 75,000 वोल्ट लिख लो, ठीक है। एंड हाँ, अब आगे चलते हैं। 75,000 वोल्ट was provided to mixture. The spark chamber was connected to another flask with arrangement for boiling water, provision for evaporation. The other end of the spark chamber was connected to a trap by a tube that passed through a condenser. An arrangement for the aqua solution equivalent rain and Haldane soup. ये important है, Haldane soup पे क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्यों आता है। कंडेंसर किसके इक्वल है, रेन और Haldane soup के। तो ये लिख लो ऐसे, कंडेंसर इक्वल टू का सिंबल, कंडेंसर इक्वल, और लिख दो रेन एंड हेल्डन सूप। जो रेन और हेल्डन सूप काम करता है ना, वही काम कंडेंसर करता है, ठीक है। वही कंडेंसेशन करा देता है वेपर्स का। वो ट्यूब को पानी के थ्रू, वो ट्यूब को ठंडे पानी के में डालते हैं, उसको कंडेंसर कह दिया। इसका ये ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट टू रेन एंड हेल्डन सूप, ठीक है। ओपरिन एंड हेल्डन का जो हेल्डन सूप है वो। द ट्रैप इन टर्न वॉज कनेक्टेड विद अ फ्लास्क फॉर बॉइलिंग वाटर, अरेंजमेंट फॉर फिर से सर्कुलेशन, ठीक है। The control apparatus contained every arrangement for devoid of energy source. एनर्जी सोर्स नहीं था इसमें। After 18 days, significant amount of organic compounds या फिर monomers, ठीक है, वो आया और दिखा monomers। After 18 days, ये days भी याद रखना, 18, ठीक है। Monomers were formed, such as amino acids and peptide chains began to appear in the aqueous solution sample of the experimental setup. Amino acids found were हाँ ये important है। Amino acids, अच्छा देखो क्या किया, such as amino acid and peptide chains began to appear in the aqueous sample of the experimental setup. Amino acids and peptide chains were found, ठीक है। और अब चूंकि अमीनो एसिड और पेप्टाइड चेन्स मिल चुका है, तो अमीनो एसिड जो था वो तीनों था एलानिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। ये याद करना है, ठीक है। कौन कौन अमीनो एसिड मिला था, एलानिन अच्छा एलानिन ग्लाइसिन तो याद रहेगा, ठीक है। एलानिन ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड याद रखना, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन ग्लाइसिन, ठीक है। Therefore, the obvious inference was that abiotic synthesis of organic monomers occurred in the stimulated experimental conditions. By analogy, such synthesis have occurred in the primitive. तो analogy के हिसाब से ऐसा ही कुछ
अपने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स है, स्पार्क डिस्चार्ज है, कितना था यहाँ पे 75,000 वोल्ट था। और बाकी कंडेंसर है और फिर बॉइलिंग वाटर है, और ये हेल्डन सूप को रिप्रेजेंट करता है और रेन को रिप्रेजेंट करता है एनालॉजिकली। और ये रिएक्शंस भी सारे असली रिएक्शन को एनालॉगस हैं, ठीक है। Later, several other scientists also conducted similar experiments by subtly changing the starting materials and sources of energy like UV radiations and became more sustainable sugar like ribose, hexose, and nitrogen bases like adenine, guanine, pigments and fats. अच्छा adenine guanine तो वो दोनों का दोनों प्यूरिन हो गया, adenine guanine दोनों प्यूरिन होता है, ठीक है। तो प्यूरिन्स, पिगमेंट्स एंड फैट्स, क्या पता ऐसे पूरे पायरिमिडिन बना था कि नहीं। तो पायरिमिडिन तो नहीं बना, नहीं नहीं नहीं, एडेनिन तो भैया जी और फिर सी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, दोनों प्यूरिन है। एडेनिन गुआनिन दोनों प्यूरिन है। तो नाइट्रोजन बेसिस लाइक एडेनिन गुआनिन यानी प्यूरिन्स। ये कहीं नहीं लिखा है कि यूवी रे पे पायरिमिडिन बना। पायरिमिडिन मतलब वही अपना, समझ लो ना, साइटोसिन और अपना थाइमिन। थाइमिन और साइटोसिन नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ, तो प्यूरिन है दोनों ना, तो इसीलिए। अच्छा, इसको भी लिख लिया जाए, मतलब अदर ऐसे लिखते हैं ना, अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट। और फिर लिखो मतलब चेंजिंग, अदर सिमिलर एक्सपेरिमेंट चेंजिंग स्टार्ट मटेरियल एंड सो एनर्जी सोर्स लाइक यूवी रे, बस इतना लिख दो, लाइक यूवी रे। और फिर लिखो हेक्सोस, एरो देके पूरा बड़ा सा एरो देके, हेक्सोस, राइबोस, और फिर एक लाइन नीचे करके एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन, फिर पिगमेंट एंड फैट, पिगमेंट और फैट भी मिला। Sometimes meteorites that struck the earth and when the composition of meteorites was analyzed, they were found to contain similar compounds as produced in the above experiment. This indicates that similar chemical reactions were taking place elsewhere, also in the space. समझे? With experimental demonstration and evidence from the meteorites, the concept of chemical evolution, that is, origin of complex organic molecules from simple inorganic molecules, was more or less accepted, but the second part of the conjectured story, that is, origin of life forms, these organic compounds, has still not been proved. With experimental evidence from meteorite, the concept of chemical evolution, that origin was more or less accepted, but the second part of the conjectured story, that is, origin of life forms from these organic molecules, compounds, has still not been proved. मतलब ये कहना कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, ये तो एक्सेप्ट हो चुका है, पर सेकेंड पार्ट मतलब कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ, और यहाँ तक प्रूव, इससे कहाँ प्रूव हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना अपना, पिगमेंट, फैट, एडेनिन, गुआनिन, प्यूरिन्स, राइबोस, हेक्सोस, एडेनिन, गुआनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, तो एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एडेनिन, गुआनिन, इस तरह से जो बना है सब, इससे तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है, मगर इससे लाइफ अभी आगे बनेगा, ठीक है। एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स अंडर द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तीनों डेफिनेशन अच्छा है। कीमोगैमी, कीमोगैमी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कीमोगैमी सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स by chemical reaction, synthesis of organic molecule by chemical reactions। बायोजेनी, कीमोगैमी हो गया, कीमोजेनी हो गया, अब बायोजेनी, कीमोजेनी डन, बायोजेनी, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बायोमोलिक्यूल्स इन ब्रॉथ, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ replicating biomolecules in broth, formation of self-replicating biomolecules in broth, primordial hot soup और warm little pond। ब्रॉथ मतलब कह रहा है क्या होता है, कौन। नंबर 3,
कॉग्नोजेनी, ठीक है। Evolution of various forms of life, evolution of various forms of life for diversification of existing group, various form of life। कॉग्नोजेनी मतलब इवोल्यूशन हो गया, सेपरेट होना हो गया। इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप, जो ग्रुप एग्जिस्टिंग है उसका डाइवर्सिफिकेशन या फिर अलग अलग लाइफ फॉर्म उसी से बनने का, उसको कहेंगे कॉग्नोजेनी। तो कीमोजेनी, बायोजेनी और कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी, बायोजेनी और कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी, बायोजेनी, कॉग्नोजेनी। कीमोजेनी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बाय केमिकल रिएक्शन। बायोजेनी का मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बायोमॉलिक्यूल्स इन ब्रॉथ। और कॉग्नोजेनी मतलब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। अब आता है इंक्लूजन ऑफ प्रीबायोटिक सिस्टम्स। Experiments of Miller and other scientists demonstrate that the prebiotic molecules could have been formed under the conditions which are more likely existed on the early Earth. Still, the formation of prebiotics for small molecules does not necessarily lead to origin of life. For the origin of life, at least three conditions needed to have been fulfilled. There must have been a supply of self-replicator, that is self-producing molecules, खुद को बनाने वाला molecule. Copying of these replicators must have been subject to error via mutation. Copying of these replicators must have been subject to error via mutation. The system of replicators must have required a perpetual supply of free energy and partial isolation from the general environment. The high temperature prevailing on early Earth would have easily fulfilled the second condition, that is, requirement of mutation. Thermal motion would have continually added the prebiotic molecules. बात तो सही है। The third condition, that is partial isolation, has been attained with within aggregates of artificially produced prebiotic molecules. These aggregates, called protobionts, can separate combination of molecules from the surroundings, maintain an environment, but are unable to reproduce. Internal environment बना सकता है अपने लिए, but unable to reproduce. Protobiont can't reproduce. Two important protobionts are coacervates and microspheres. Oparin observed that if a mixture of proteins and a polysaccharide is shaken along with the water, the coacervates form. क्या क्या हिलाने पे बनता है? प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड नहीं है, ध्यान देना है। प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड तो बने coacervate. Coacervates are colloidal particles that precipitate out of solution as tiny droplets. Oparin's coacervates also exhibits a simple form of metabolism, as these coacervates do not have an outer membrane of lipid and cannot reproduce. They fail to fulfill the requirement of a candidate of probable precursors of life. इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता और इसके पास जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है भी नहीं। बाकी इसका और क्या कैरेक्टरिस्टिक था? इट कैन मेंटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट, और बाकी कोलॉइड है, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को घुमाने में मिलता है, कोलॉइड वाला प्रॉपर्टी शो करेगा वही सब। तो प्रोटोबायोन था एक एग्रीगेट, और दूसरा एग्रीगेट क्या था अपना माइक्रोस्फेयर्स। तो माइक्रोस्फेयर्स वर फाउंड व्हेन द मिक्सचर्स ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपाउंड्स वर मिक्स्ड विद कूल वाटर। जब ठंडे पानी के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाए तो बना। if the mixture contains lipids, the surface if the mixture contains lipid, the surface contains a lipid bilayer reminiscent of the lipid bilayer of the cell membrane. Sidney Fox obtained a protenoid chromosome microsphere. Protenoid microsphere उसको मिला था, protenoid microsphere। ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटीनॉइड एक बस टर्म है, उसको याद रखना है। हालांकि इधर ना 3 पॉइंट जो है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कंडीशन। और ऐसे रिक्वायरमेंट ऑफ 3 कंडीशन लिख दो, बस इतना ही लिख दो। और लिखो नंबर 1, देयर मस्ट हैव बीन अ कॉपी सेल्फ रेप्लिकेटर्स। नंबर 1 लिखो सेल्फ रेप्लिकेटर्स, सेल्फ रेप्लिकेटर्स लिख दो। और दूसरा क्या है? कॉपीइंग ऑफ दिस रेप्लिकेटर्स। हाँ, दूसरा लिख दो म्यूटेशन।
और तीसरा चाहिए द सिस्टम और मस्ट हैव बीन रिक्वायर्ड अ परपेचुअल सप्लाई फ्री एनर्जी लिख दो, फ्री एनर्जी सोर्स, और free energy source and isolation from general environment, and isolation partial isolation from general environment, ठीक है, जनरल environment, ठीक है। अब क्या है कि सेकंड तो हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर सुपर हाई अर्थ का उस टाइम। बाकी जो नंबर 3 है उसको पे एरो दे के नीचे लिखो, उसका 3 के नंबर से। Partial isolation has been attained by aggregates of artificially produced prebiotic molecules. Aggregates और फिर एग्रीगेट्स के बाद फिर दो लिख दो, प्रोटोबायोन्ट्स और माइक्रोस्पोर्स, ऐसे ऐसे दो अलग अलग प्रोटोबायोन्ट्स और पूरा लाइन पारो। और फिर उसके बाद लिख दो उस साइड, एक सेकेंड, प्रोटोबायोन्ट्स लिख दो और सॉरी एग्रीगेट्स है ना, एग्रीगेट्स के बाद प्रोटोबायोन्ट्स लिखो और फिर प्रोटोबायोन्ट्स से दो लाइन मारो, हाँ ठीक है, कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फेयर्स, कोएसरवेट्स एंड माइक्रोस्फेयर्स। कोएसरवेट्स, हाँ प्रोटोबायोन्ट्स के पैर लेके लिख सकते हो भी ब्रैकेट में फिर कि जो दोनों का दोनों है वो दोनों का दोनों इंटरनल इन्वायरमेंट में रह सकता है। वो लिखा हुआ है ना, प्रोटोबायोन्ट्स कैन सेपरेट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द मेंटेन एन इंटरनल एंड तो प्रोटोबायोन्ट्स के लिए, या फिर रुक जाओ रहने दो, दोनों में लिख दो, कोएसरवेट्स में और माइक्रोस्फेयर्स में। अनेबल टू रिप्रोड्यूस दोनों में, अनेबल टू रिप्रोड्यूस दो बार लिख दो, दोनों में अनेबल टू रिप्रोड्यूस। प्रोटोबायोन्ट्स भी अनेबल टू रिप्रोड्यूस, तीनों अनेबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, तीनों का तीनों अनेबल टू रिप्रोड्यूस है। अब क्या है, अब लिखते मेंटेन एन इंटरनल पॉइंट सिमिलरिटी नंबर 2, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, मेंटेन INTNV एनवायरनमेंट, मेंटेन INT एनवायरनमेंट। अब लिखो डिफरेंसेस का पॉइंट, फिर से लिखो नंबर 1 टू तो कोएसरवेट्स लिखते हैं ओपेरिन, बस ओपेरिन और डेट 1924 बस। उस साइड लिखो सिडनी फॉक्स, बस इतना बहुत है, सिडनी फॉक्स 1950, मतलब माइक्रोस्फेयर्स बाद में बना। अभी लिखो कैसे बनता है कोएसरवेट्स, तो ये बनता है किससे, पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन प्लस पॉलीसैक लिख दो और फिर ब्रैकेट में लिख देना शेक, ठीक है। और इधर लिख दो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कोल्ड वाटर, ठीक है। अब लिखो नंबर 3 दोनों में, अब लिखो कोएसरवेट्स में हाँ लिख दो इधर कोलॉइड, ये तो थी कोएसरवेट्स लिख दो कोलॉइड, और लिख दो कोएसरवेट्स आल्सो सिंपल फॉर्म मेटाबॉलिज्म, और these coagulates do not have outer membrane of lipid, हाँ ये लिख दो थर्ड पॉइंट में, not have outer membrane of lipid and can't reproduce, they fail to fulfill the, हाँ माइक्रोस्फेयर्स लिखो कूल वाटर, लिपिड हाँ चलो ठीक है। माइक्रोस्फेयर में लिख दो है होता है लिपिड बाई लेयर होता है लेयर, और ब्रैकेट में लिख दो रेमिनिसेंट टू सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाई लेयर ऑफ
It is to lipid bilayer of cell membrane. तो दोनों का डिफरेंस सब आ गया ना, ऑलमोस्ट सब आ गया। हाँ, अब आता है अगला पेज। अच्छा, दोनों ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान देने का बात है। देयर इज अ कंसिडरेबल, हाँ, और ये जो अपना माइक्रोस्फेयर है, जो अपना ये माइक्रोस्फेयर है, नहीं, जो अपना कोअजरवेट्स है, नहीं, दोनों ही इंटरनल इन्वायरमेंट बना पाता है। ओपेरिन और माइक्रोस्फेयर में बस कंपोजिशन का अंतर है, और उन लोग के ये इसका उसका अंतर है कि मतलब इन दोनों कंपोजिशन का केवल अंतर है। ओपेरिन और इसमें क्या कहते हैं, ओपेरिन और इसमें है माइक्रोस्फेयर और कोअजरवेट्स में केवल इतना अंतर है कि दोनों में कंपोजिशन बिल्कुल अलग अलग है। कोअजरवेट्स में अपना प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड होता है, और जो अपना वो है क्या कहते हैं अपना ये माइक्रोस्फेयर है, उसमें कोल्ड वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जो अपना दोनों एक और डिफरेंस है उसमें कंपोजिशन के अलावा, वो है कि एक के पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लिपिड नहीं होता, और दूसरे के पास लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। और बस यही है। और फिर ओपेरिन 1924 में खोजा था कोअजरवेट्स को, और 1950 में सिडनी फॉक्स खोजा था प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर्स को। ये याद रख लेना कि सिडनी फॉक्स प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर खोजा था, ठीक है। प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फेयर। अच्छा, केमोजेनी क्या था, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल रिएक्शन। और बायोजेनी क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग बायोमोलिक्यूल्स इन ब्रोथ। कॉग्नोजेनी क्या था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। अब क्या है, there is a considerable discussion among biologists as to how the first cells may have evolved. The discovery template raise the interesting possibility that coagulates may not have been the first step in the evolution of life. Perhaps the first macromolecules were RNA molecules, and the coagulates may not have been the first step in the evolution of life. Black में है लिखा हुआ। Perhaps the first macromolecule were RNA molecule, ठीक है, and the initial steps on the evolutionary life line were ones leading to more complex and stable RNA molecules. Later, the stability might have been improved by surrounding the RNA within a coagulant or a microsphere. Still, other scientists reject the notion of RNA world entirely, pointing out that some RNA components are too complex to have been present on the primitive Earth. लेकिन अपने को यही याद रखना क्योंकि उसको डार्क में लिखा हुआ है सामने। कोएजावेट्स मे नॉट हैव बीन, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं ही हुआ क्योंकि वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता ना। अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता तो एज ए लाइफ फॉर्म कैसे बनेगा। मे नॉट हैव बीन फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। Perhaps the first macromolecules were RNA molecules, may not have been the first organic molecule, may not have been the first organic molecule. Coagulates may not have been the first organic molecules. Coagulates may not have been the first organic molecules. First step in evolution of life. Perhaps first macromolecule were RNA. Molecules were RNA molecules. The first non-cellular life could have originated 3 billion years back ago. They would have been giant RNA molecules and nothing else. जैसे RNA हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसैक हो गया, यही सब होगा। अच्छा, प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड पे कोएजावेट्स बनता है, तो वैसे तुम याद रख सकते हो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड वाला लफड़ा, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रख सकते हैं, रखना पड़ेगा। फर्स्ट नॉन सेलुलर, ठीक है, फर्स्ट लाइफ कब आया, जो लाइफ कब आया फर्स्ट, 4 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया, 3 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, बस इतना याद रख लो। आरएनए प्रोटीन जायंट मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख लो, जायंट मॉलिक्यूल आरएनए कॉमा
प्रोटीन, डीएनए नहीं है, ध्यान से, आरएनए कॉमा प्रोटीन कॉमा पॉलीसैक, एकदम बेसिक बेसिक, ठीक है। अब आता है ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड अमंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इन द ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में पहला ऑर्गेनिज्म आया ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। They presumably obtain energy by fermentation of the sum of these organic molecules. They were anaerobic, that is capable of respiration in absence of oxygen. They required ready-made organic material as food and thus they were heterotrophs, chemoheterotrophs. They required ready-made organic material as food and thus they were heterotrophs, chemoheterotrophs, ठीक है। They were anaerobic, that is capable of respiration in the absence of oxygen, क्योंकि उस टाइम reducing atmosphere था ना भाई, इतना common sense है। In the absence of oxygen, they required ready-made organic material as food, and thus they were heterotrophs, chemoheterotrophs. They were heterotrophs मतलब chemoheterotrophs, ध्यान देने का है, क्योंकि photoheterotrophs तो होगा नहीं। तो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली कीमो हेटेरोट्रॉफ थे, हेटेरोट्रॉफ थे वो भी कीमो। अब आता है ऑटोट्रॉफ। सप्लाई ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब खत्म हो चुका होगा तो सम ऑफ देम द हेटेरोट्रॉफ्स माइट हैव बीन इवॉल्व्ड इनटू ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स were capable of producing on their own organic molecules by chemosynthesis or photosynthesis. Development of chemosynthesis, the organisms performing chemosynthesis are called chemoautotrophs, ठीक है। They were anaerobic, अच्छा अच्छा, chemosynthesis था बट anaerobic था। पहला ऑटोट्रॉफ कैसा था, अब ये पूछ ले तो कीमोऑटोट्रॉफ था, कीमो पहला केमिकल सब हुआ है, ठीक है। Chemoautotrophs develop the ability to synthesize organic molecules from inorganic material by some chance event, ठीक है, chance event है purely. Such a mode of nutrition is present now even in some bacteria, example sulfur bacteria, iron bacteria, nitrifying bacteria, हाँ ये सब तो है ही। Development of photosynthesis, photosynthetic pigments, the photoautotroph developed the pigment chlorophyll by combination of simple chemicals. They prepared organic food by using solar energy captured with the help of chlorophyll. They lacked biochemical pathways to produce oxygen. They were still anaerobic and utilize hydrogen from the sources of water. ये भी इम्पोर्टेंट है, वाटर से नहीं यूज़ करता था पहले वो लोग, और वो अभी भी एनारोबिक ही था, हाँ तो एनारोबिक ही था, ठीक है। At later stage, oxygen releasing photosynthetic organisms developed. They were similar to existing blue-green algae. बाद में बना photosynthetic actually, और वो भी कैसा था, साइनोबैक्टीरिया कैसा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इतना लो लेवल, समझ रहे हो, एकदम ही लो लेवल चल रहा है सब। They used water to get hydrogen and released oxygen. ये यूज़ कर रहा है साइनोबैक्टीरिया। They used water to get hydrogen and released oxygen. In addition to oxygen, the atmosphere started oxidizing methane and ammonia, which began to disappear. तो सब कर रहा था ऑक्सीडाइज मीथेन और अमोनिया को, तो CO2N2 बन रहा था दबा दब। Life was present on Earth about 3.94 billion years ago, ठीक है, हाँ सही बात है। However, the oldest microscopic found are photosynthetic cyanobacteria that appeared 3.3 to 3.5 billion years ago। तो ये ऐसा ही लिख सकते हैं, सबसे ऐसे लिखो स्टार मार्क लेके, the oldest microfossil discovered so far। और एरो दे के लिख दो 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर्स को, और फिर ब्रैकेट में लिख दो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक था एकदम, मतलब आज का फोटोसिंथेटिक जैसा, ठीक है, और वो आया 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर्स, मतलब बेसिकली सेम था, मतलब एरोबिक था, एरोबिक, और वाटर जो है उसको उससे लेता था हाइड्रोजन। अभी फिर से इसको देखते हैं, ये वाले पार्ट का ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ, द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, प्रोबेबली एनारोबिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ था, हेटेरोट्रॉफ था। अब जो ऑटोट्रॉफ आया, तो पहले ऑटोट्रॉफ जो आया वो था कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आया एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, तो पहले जो फोटोसिंथेसिस करता था
वो पूरा कंप्लीटली आज का जो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं वो सूरज को यूज़ तो करता था, क्लोरोफिल तो था उसके पास, मगर वो एनारोबिक था. The photosynthesis organism, the phototrophs, autotrophs, developed the pigment chlorophyll by the combination of simple chemicals. They prepared organic food by using solar energy captured by the lacked the biochemical pathways to produce oxygen. They were still anaerobic. फोटोसिंथेसिस करते के वक्त बाद भी वो लोग एनारोबिक था, और जो हाइड्रोजन था वो रिसोर्सेज फ्रॉम अदर देन वाटर था. एट लेटर स्टेज ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी आ गया. बाद में फिर से फोटोसिंथेटिक लोग आया, पर वो बाद में आके एरोबिक हुआ. एरोबिक बाद में हुआ है. फोटोसिंथेटिक तो हो गया, मगर फोटोसिंथेटिक एनारोबिक था स्टार्ट में. और जो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक एरोबिक है. एरोबिक फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया मतलब एकदम थोड़ा आगे है इन लोग के कंपैरिजन में. और वो भी आगे मतलब क्या 3.3 से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका सबसे पुराना अभी हम लोग का जो माइक्रोफॉसिल अभी तक मिला है. तो समझ रहे हो ना क्या टाइमलाइन कैसे चल रहा है. और हाँ, ये भी है कि जब फोटोसिंथेसिस होने लगा तो मीथेन और अमोनिया के जगह CO2 N2 बनने लगा धीरे धीरे बिलियन ऑफ ऐसा ऐसा. अब आता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर. इसी दौरान अपना अल्ट्रावायलेट चेंज सम थोड़ा सा ऑक्सीजन को ओजोन में बदल दिया. अब the ozone formed a layer in the atmosphere blocking the UV rays and leaving visible light as the main source of energy. हाँ, अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो विजिबल लाइट ही हुआ ना बस. अब आता है फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक कैसे बना? टू न्यूक्लियर सेल्स कैसे बने? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वर्ल्ड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, जो कि बाद वाला फोटोसिंथेसिस पहले तो एकदम ही भंट हेट्रोट्रॉफ. और वो क्या था? एनारोबिक हेट्रोट्रॉफ था. एकदम ही कीमो ऑटोट्रॉफ था. कीमो हेट्रोट्रॉफ था. कीमो हेटेरोट्रॉफ सब खा गया सब. और जो मॉलिक्यूल था वो सब खा गया हेट्रोट्रॉफ. फिर आया ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ में भी एनारोबिक था स्टार्ट में सब. फिर बाद में आया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वाला ऑटोट्रॉफ. मतलब बाद में आया फोटोसिंथेसिस सही तरीके से करने वाला साइनोबैक्टीरिया वगैरह. तो यही सब साइनोबैक्टीरिया जो है, यानी करेक्ट फोटोसिंथेसिस जो हम लोग समझते हैं ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, उसको क्या करें, इवॉल्व इतना ऑक्सीजन बना दिया इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. और प्रोकैरियोट्स ग्रेजुअली मॉडिफाई किया टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नया कंडीशन. और जो डेवलप्ड और ट्रू हो गया और उसमें स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल आ गया. और फ्री लिविंग यूकैरियोटिक सेल लाइक ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड इन द एशियन ओशन probably 1.5 billion years ago. Primitive eukaryotes lead to the evolution of protista, fungi, plantae और अपना भाई एनिमिलिया. ठीक है, तो इसको भी लिख लो. ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के बाद मतलब बस ये लिख दो कि यूकैरियोटिक सेल लाइक. ठीक है, बस ये लिख दो यूकैरियोटिक सेल और ब्रैकेट में लिख दो सेल लाइक. ऐसा नहीं लिख दो, मतलब 2-4 टर्म जो दिया हुआ है और उसके बाद लिख दो 1.5 बिलियन बिलियन ईयर अगो. ठीक है. Summary of main steps of origin of life according to modern theory of all origin of life. अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है. फ्री एटम था हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मात्र यही सब था, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. फिर आया फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. कौन? 4, बस यही 4 है. CO2, अमोनिया और अपना H2 और थोड़ा सा वाटर वेपर. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वही सब. और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. फिर फॉर्मेशन ऑफ इओबायोन्स. ये इंपॉर्टेंट है. इओबायोन्स क्या हुआ? प्रोटोबायोन्स जो था ना, कोएजावेट्स और माइक्रोस्फेयर, तो ये दोनों को ही प्रोटोबायोन्ट कहता है और इसी को ही इओबायोन्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. इओबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट और कोएजावेट्स और मोनो. ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स है ना, तो उसी के बगल में कहीं पे लिख दो ब्रैकेट में करके इओबायोन्ट्स. क्वेश्चन में दे सकता है इओबायोन्ट्स प्रोटोबायोन्ट्स करके ऐसा, मैच द फॉलोइंग कुछ तो दे देगा ना. फिर आया प्रोकैरियोट्स. ये सब के बाद विदाउट ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोट आया 1.5 बिलियन ईयर को. और एकदम ही फालतू वाला मतलब जो है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, वो था 3.3 से 3.5 और वो सबसे पुराना अभी तक जो इंसान खोज पाया. विच रिलेटेड एक्सपेरिमेंट ऑन किल्ड यूज्ड टू डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ऐसा मिलर, लुई पास्चर ऑब्वियसली. What were the conditions present on the early earth that were, देखो 3 कंडीशन क्या क्या था. हाई टेम्परेचर था, वोल्केनो था और क्या था एक और बिजली था. हाई टेम्परेचर,
वॉल्केनिक इरप्शन और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, नो हाँ ये भी है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शन। लाइफ एक्सपेक्ट बिग बैंग थ्योरी, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं है, वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, 20 बिलियन ईयर को हुआ था, हाइड्रोजन हीलियम का लफड़ा था उसमें। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, which of the following was used as an energy source by Miller in his experiment? यूवी रेज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज 75,000 वोल्ट, और क्या था 800 डिग्री सेल्सियस, दोनों याद रखना है, 800 डिग्री सेल्सियस और 75,000 वोल्ट, ठीक है। और 2:1:2 था, मीथेन इज टू अमोनिया इज टू हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ अबाउट, देखो हम लोग को पता है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो है, तो हम लोग 2 बिलियन ईयर्स अगो मारेंगे, फिर वही है फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सेल लाइक, देखो साफ साफ लिखा है, यूकैरियोटिक का डेट और सेल लाइक का डेट एक ही है, यूकैरियोटिक सेल लाइक ऑर्गेनिज्म, ट्रू न्यूक्लियर सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसके पहले जो था वो सेल था ही नहीं, वो केवल डेवलपमेंट ऑफ मतलब फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस था, ऑटोट्रोफ्स और हेटेरोट्रोफ्स था, ऑर्गेनिज्म था पर सेल नहीं था, पहला ट्रू न्यूक्लियर टाइप सेल यूकैरियोटिक का थोड़ा लेट आया है, और इसका 2 बिलियन को ही मारोगे, ठीक है, 1.5 बिलियन या 2 बिलियन जो भी है। अब क्या है, इसको जैसा मैं मिनिमाइज कर दूँ, हाँ ठीक है, अब सही है। फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेबलिंग, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो ए में क्या है, ए है इलेक्ट्रोड, सही है। बी क्या है, बी में गैसेस है, तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर, पहला और चौथा सही है, नहीं केवल पहला सही है क्योंकि CO2 नहीं था उस टाइम, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर बस, और सी कंडेंसर है और डी वैक्यूम है, हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट कोएजर्वेट्स, कोएजर्वेट्स के बारे में कौन सा गलत है, दे आर सोलली प्रोटीन एग्रीगेट्स, यही गलत हो गया भाई, सोलली तो नहीं, अच्छा एक सेकंड और देखो, दे डू नॉट हैव लिपिड मेम्ब्रेन, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, सेकंड बिल्कुल सही है। थर्ड, इनिशियल वर्क ऑन कोएजर्वेट्स सही है, 1924 में, 1924 में ओपरिन ने किया था काम। दे आर प्रोटोबायोन्ट्स विद पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड वाटर्स, वाटर तो वाटर नहीं था भाई मेरे, फोर्थ होगा मेरे हिसाब से, दे आर प्रोटोबायोन्ट्स विद पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड वाटर, ना 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 बिल्कुल गलत है ये, वाटर तो नहीं था, वाटर wasn't there, I remember. Let's see. Well, I was taken along with water coagulates from, yes water था, तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड प्लस वाटर, तो वाटर दोनों में यूज़ होगा, उसमें कोल्ड वाटर था अपने उसमें माइक्रोस्फेयर में, और कोएजर्वेट्स में नॉर्मल वाटर के साथ चेक करना था, तो ऑप्शन नंबर 1, हाँ 1 तो गलत लग ही रहा, दे आर सोलली प्रोटीन एग्रीगेट्स, नहीं दे आर प्रोटीन प्लस पॉलीसैकेराइड प्लस मतलब वाटर में मिला के फिर शेक, तो फोर्थ भी सही है, दे आर प्रोटोबायोन्ट्स विद पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड वाटर, वाटर होता है दोनों में होता है, प्रोटोबायोन्ट्स, इयोबायोन्ट्स, मोनोस प्रोटोबायोन्ट्स, इयोबायोन्ट्स, कोएजर्वेट्स और माइक्रोस्फेयर्स, चारों में वाटर होगा, ठीक है, याद रख लेना ऐसे ही कुछ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल origin of life was proposed by the theory of, obviously, theory of panspermia. Which of the following is गलत about the coacervates in the abiogenic origin of life? coacervates के बारे में क्या गलत है, they are partially isolated from the surroundings, ये तो सही है, they could maintain an internal, ये भी सही है, they are able to reproduce, नहीं कोई भी प्रोटोबायोन्ट, इयोबायोन्ट, माइक्रोस्फेयर या कोएसर्वेट कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्रोटोबायोन्ट कर सकता है, ये मेन लाइन ही यही है प्रोटोबायोन्ट्स का, ठीक है ध्यान देना, क्योंकि इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर फोर्थ लाइन ध्यान देना, दे कुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। मिलर्स एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर द थ्योरी ऑफ, एस.एल. मिलर provided evidence for the theory of chemical evolution, yes chemical evolution का theory कौन दिया था, ओपरिन हेल्डेन, ओपरिन था रशियन और अपना हेल्डेन था ब्रिटिश और एस.एल. मिलर था अपना अमेरिकन। गलत कौन सा पेयर है, हेल्डेन हॉट डाइल्यूट सूप बिल्कुल सही है, एक सेकंड हॉट डाइल्यूट सूप नहीं है, एक सेकंड कोल्ड डाइल्यूट सूप होगा शायद, खैर ओपरिन, ओपरिन गलत है भाई, ओपरिन सही है,
ओपेरन कोएसरवेट 1924 बिल्कुल सही है। सिडनी फॉक्स माइक्रोस्फीयर्स 1950 बिल्कुल सही है। स्पेलेंजिनी ए बायोजेनेसिस ए बायोजेनेसिस हाँ ये भी सही है। तो फर्स्ट ही गलत है भाई, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है, हेल्डन वाला गलत है। क्योंकि हेल्डन ने ये नहीं दिया था कि मतलब ये नहीं दिया था हेल्डन ने कहा, हेल्डन मतलब जो है, हेल्डन सूप जो है वो कंडेंसर का था, ठीक है। तो कंडेंसर का तो जो सूप था वो तो ठंडा था ना, कंडेंसर क्योंकि ठंडा करता है ऐसे भी, तो शायद इसीलिए ये नहीं होगा। चलो इसका आंसर चेक करता हूँ अभी तुरंत। लेट्स सी कैसे चेक होगा। ज़ूलॉजी एवोल्यूशन चेक द आंसर। ट्राई योरसेल्फ का था क्वेश्चन ना। 7 का है द पॉपुलेशन लेवल, और ट्राई योरसेल्फ नहीं है, एक्सरसाइज है। नाइस। अब हम लोग देख सकते हैं आंसर साथ साथ। अब चलेगा। यस। क्वेश्चन नंबर था 6 का, मेरे को लगता है फर्स्ट होगा। 6 का आंसर फोर्थ है, फोर्थ गलत है भाई, फोर्थ गलत है। स्पेलेंजिनी जो था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को मतलब बायोजेनेसिस दिया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस तो दिया ही नहीं था कुछ ऐसा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था उसको दिया था वो। तो यही है, फोर्थ गलत है, फर्स्ट सही है। हॉट डाइल्यूट सूप हेल्डन, ये लिख लो, लिख लो हेल्डन और एरो देके हॉट डाइल्यूट सूप बस लिख लो ऐसे ही। हेल्डन, हेल्डन करके लिख सकते हैं, हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। The first cellular life form of life did not possibly originate until about 3 billion years ago. Obviously, the theory of special creation has 3 connotations. Which one गलत है? Earth is about 4000 years old, सही है। All humans that see today are created as such, सही है। Fourth, the earliest cells were chemotors। देखो सबसे पहला सेल जो था, earliest cells were chemoheterotrophs। I feel second होगा इसका आंसर, कीमो हेटेरोट्रॉफ था, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ आया। कीमो ऑटोट्रॉफ में भी पहले नॉन ऑक्सीजनिक फिर ऑक्सीजनिक। कुछ 9 है ना, तो 9 का सेकंड है, हाँ सेकंड है भाई, सही है। ए 10th, who said that the life arises from the pre-existing life? Omnis viva ex vivo। viva क्या था? omnis vivo, omnis omnis vivum ex vivo, ठीक है। which life, लुई पास्चर होगा इसका आंसर, लुई पास्चर का था, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब एवोल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं लाइफ फॉर्म्स के, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन है और बस फॉसिल्स हो गए। लेट्स सी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और थ्योरी। Many observations were made during the sea voyage by Charles Darwin and HMS Beagle.
ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक दो पेज छोड़ के अब लिखो तुम यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ थ्योरी। नाइस। लिखो, many observations were made during sea voyage by Charles Darwin in a sail ship of HMS Beagle, 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 which went around the world. He was appointed as a naturalist for this voyage to study the vast flora and fauna of the different continents and islands. He suggests that every living organism, whether animal or plant, has its own characteristics. Characteristics can be considered either details or appearance of behavior. For example, we have four limbs, and bearing four limbs is one of our characteristics. During his voyage, Darwin observed that even of different looking and differently behaving organisms share some similarities among themselves. These similarities may either be in the body surface or in the behavior. He also observed that living organisms share similarities not only among themselves but also with those organisms which have been become extinct from the earth. Third theory types are based on the observation, Darwin concluded that all the existing life forms share similarities to varying degrees and also may share common ancestors. Greater are the similarities, more closely they are related, and more closely they are related, more recently they have a shared common ancestor. Hence, we can say that if two organisms share common ancestor in recent history, it would be present most likely in the same epoch, period, or era. And if they share a common ancestor in the distant history, they would have a different epoch, different period, or different era, depending on how distantly they share it. Okay? They can One can also conclude from the works of the other that geological history of Earth closely correlates with the biological history of Earth. True, there have been become extensions of different life forms. ठीक है? There have been nice. There has been gradual evolution of life form. Concept of natural selection. Darwin not only talked about similarities but also about differences of variations among the organisms. He said that every population has its own characteristic features that differ from the characteristics of the other population. ठीक है? Now, nature poses the same challenges to all living organisms in the form of harsh climate, food scarcity, and natural disasters like flood, droughts, etc. The characteristics that enable some organisms to survive better than others in the same environment are said to selected by nature. Some use the word fitness for this compatibility to survival, but Darwin only referred to reproductive fitness. Darwin का मतलब ही फीमेल था, उसका फिटनेस का लेना देना बस रिप्रोडक्टिव फिटनेस से ही था, उसको और कोई फिटनेस से कोई मतलब नहीं था। डार्विन को बस रिप्रोडक्टिव फिटनेस से मतलब था। मोर सिलेक्शन बाय अब अल्फ्रेड वेलेस, हाँ वन मोर नेचुरलिस्ट। चार्ल्स डार्विन भी नेचुरलिस्ट और अल्फ्रेड वेलेस भी नेचुरलिस्ट। मलय आर्किपेलागो पे था वेलेस जी, मलय आर्किपेलागो, ठीक है। आर्किपेलागो मतलब आइलैंड्स का एक झुंड, ठीक है, archipelago. And like Darwin, he also talked about fitness of organisms. He also came to the similar conclusions that those organisms which can adapt better in their environment are selected by nature. Malay archipelago. Archipelago means a chain or cluster of islands. Malay here comes from the Malay race or brown race of humans. Malay archipelago is the archipelago between the mainland Southern Asia and Australia. Now, चार्ल्स ब्राउन डार्विन, डार्विन बोल रहे हैं। डार्विन वॉज एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट, और इंग्लिश दोनों इंग्लिश है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वेलेस दोनों को एरो देके लिख दो। अंग्रेजी क्या, इंग्लिश, इंग्लिश क्या लिखें, इंग्लिश नेचुरलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश नेचुरलिस्ट, इंग्लिश नेचुरलिस्ट, सही है।
He is known for his independently proposing a theory for evolution due to natural selection that probably prompted Charles Darwin to publish his own theory. Who proposed the concept of a common ancestor? Charles Darwin. On what basis the common ancestor was given? On characteristic and concept of common ancestor was given by Charles Darwin. ये लिख सकते हैं. Charles Darwin gave the concept of common ancestry. और चार्ल्स डार्विन बोला है कॉमन एंसेस्टरी. अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. At what level of grouping organisms or grouping of organisms does evolution occur? What level of grouping of organisms does evolution occur? Let's see. क्या है आंसर? At the level of population. At the level of grouping of organisms at the population level, evolution occurs. ये important question. Star mark के 3-4 को. At population level of grouping, at population level of grouping, comma, evolution occurs. If two organisms are more closely related, then which of the following is the best definitive possibility? They will share a common history in the recent history. ठीक है, closely related है तो distant history में वो लोग शेयर करेगा ancestor को. Let's go. आगे चलते हम लोग. According to Darwin, what is the driving force of evolution? Driving force of evolution क्या है? Obviously, Darwin के लिए तो वो reproductive fitness है. ठीक है. What was the term in the characteristics? Natural selection, fitness, evolution, variations. Term given for differences in the characteristics. Variations, obviously. Darwin gave the term variations. लिख लो सब लिख लो भाई. Darwin gave term variations for differences in characteristics. Differences in characteristics. ठीक है. What are the evidences for evolution? चलो evidences for evolution क्या क्या है? Fossil है, paleontological evidences है, distribution of fossil successive strata, missing links. हाँ missing links बहुत है. Missing links, connecting links बहुत है मेरा मतलब. Sorry missing link नहीं. फिर ये घोड़ा और डायनासोर है बस. फिर घोड़ा डायनासोर थोड़ा वेर है और फिर फॉसिलाइजेशन है ख़त्म. फिर आता है आसान पार्ट एनाटॉमी होमोलोगस हेटेरोलोगस. तो चलो डायनासोर और ये घोड़ा पार्ट जल्दी जल्दी करते हैं अपन भाई. धीरे धीरे जल्दी धीरे धीरे करेंगे. ठीक है. चलो. Many important evidences are present in our nature which show that evolution has indeed taken place on the earth. These evidences clearly demonstrate that the various new forms of life forms evolves in the creation of food. Some of the evidences are discussed below. In fossils, paleontological evidences, within the course of evolution, many species became extinct from the earth forever. ठीक है. When an organism dies, its body decomposes and loss of rock and other forms of fossil. Hence, fossils are preserved remain of hard parts of the organism, plant, etc. like bone, teeth, shell, wood. In the rocks, as time passed, new rocks found on the previously formed rocks and transformation took place. ठीक है. The Earth's crust shows rocks or sediments at different ages and it was interpreted that died earlier. Fossil were remain deep ऊपर उसका ऊपर है. Principle of superposition. Lower strata or geological formation was first to be deposited and is the oldest. ठीक है. Therefore, studying the fossils and the different sedimentary layers of the Earth's crust, we can estimate the geological period in which they existed. The study also showed that the life forms varied over a time, and certain life forms are restricted to certain particular geological time spans. Hence, new life forms of life have
arisen due to at different times in the history of Earth. All this is called paleontological evidence. यही सब कुछ. Sedimentary rocks are the richest in the fossils. Sedimentary rocks are the richest in fossils. ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. Number and nature of fossils and early rocks. Number and nature of fossils and early rocks. ठीक है. चलो इसको लिखते हैं. Number and nature of fossils and early rocks. In early rocks. ठीक है. And the rocks of the early era, example Proterozoic, contain less number of fossils than the rock of later era, and only fossils of simple marine invertebrates are in these rocks. It is due to the fact that the first life originated in the sea as a simple life form. So fossils were not in plenty in the beginning as they were in the later stage. Point. Distribution of fossils in the successive strata. The distribution of fossils indicates the early fossils present in the bottom rocks are simple. However, the recent fossils found in the upper layers of the rocks are more complex. It shows that fossil forms become more and more complex as we proceed from the oldest to the recent rocks. The rocks of the Proterozoic era contain few fossils. The Paleozoic contains abundant fossils of invertebrates and fish and amphibians. The rock of Mesozoic era have fossils of great reptiles and the primitive bird and mammals. Brontosaurus, a herbivore dinosaur 25 high, 45 metric tons in weight. Tyrannosaurus was the largest flesh-eating dinosaurs. 4 पर एनसीईआरटी में लिखा है टायरानोसोरस ही बहुत सबसे बड़ा था. घटिया एनसीईआरटी. खैर 5.4 meter tall and 13 meter long. In the Cenozoic era, the fossils of various mammals were abundant. तो चारों जो है इसका एक बार लिख लो. तो लिखो पॉइंट नंबर 2 करके. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्टार्टा. फिर लिखो 4 को पॉइंट देके. पहले सबसे पहले लिखो प्रोटेरोजोइक एरा. एकदम लिख दो फ्यू फॉसिल बस. ठीक है. फिर लिखो पलाएजोइक. पलाए पला ए ओ पाला ए ओ जोइक एरा contains abundant fossil invertebrate fish mammals, amphibian, invertebrate fish and amphibian. मतलब एकदम पानी वाला टाइप. पैलेजोइक. फिर आ गया मीजोजोइक. बर्ड एंड रेप्टाइल्स और बर्ड एंड रेप्टाइल्स बस यही है. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स लिख दो और फिर लिख दो यहीं पे ब्रोंटोसॉरस हर्बीवोर डायनासोर हर्बीवोर ब्रोंटोसॉरस और फिर लिख दो टायरानोसॉरस बच्चा वाला सॉरस. ये हाइट वाइट नहीं लिखना जरूरत है. ठीक है. और क्या. फिर लास्ट में लिख दो सीनोजोइक एरा. सोइनोजोइक एरा. सीनोजोइक एरा. ठीक है. मैमल्स वो अबेंडेंट. नाइस. चलो ठीक है. अब आता है डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ ऑफ फॉर्म्स. ठीक है. On the basis of fossil study, it has been shown that the early organisms were very different from the modern forms. ठीक है. Basis, the early man lived in the caves without any social life and spread their life like beasts. But man progressed and modern man has civilized and leads a vigorous social life. Thus, the organisms have been changing since their appearance, which support the evolution has been taking place. Missing link. Transitional forms. Extinct fossil organisms which show characteristic of two groups. हाँ ये लिख लो. स्टार मार्क देख. नहीं चौथा नंबर ना. तीसरा नंबर हो गया डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स. ठीक है. ये सब ऐसे लिखने को है, कुछ याद नहीं करना अपना. अभी मेन तो अपना वो है अब जो आएगा.
Number fourth, missing link. ट्रांजिशनल फॉर्म्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में बस थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। एक्सटिंक्ट है ये और फॉसिल है ये। फॉसिल कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, बस डिफरेंट ग्रुप है, एक्सटिंक्ट हो चुका है अभी। आर्कियोप्टेरिक्स है, इट इज़ फाउंड इन द रॉक्स ऑफ क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस मतलब वही, अब जो भी है देखा जाएगा। क्रिटेशियस पीरियड। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका वाज डिस्कवर्ड इन 1861 बाय एंड्रियास वैगनर। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम लिख दो, एल्ट्रोस्फेरिक लिथोग्राफिका, ये आ सकता है। क्या नाम है? आर्कियो, ठीक है, आर्कायोटेरिक्स लिथोग्राफिका, आर्कायोटेरिक्स लिथोग्राफिका was found by Andreas Wagner in 1861. ठीक है। The fossil was placed in British Museum, London, and displays the characteristic of reptilian characters of Archaeopteryx. The body acts more or less lizard-like. A long tail is present. The bones are non-pneumatic. ठीक है, हाँ ये important है, ये सब points। ऐसे लिख दो रेप्टिलियन, 2 लाइन पारो, एवियन और रेप्टिलियन, बस इतना लिख दो 2 जगह, बस दोनों में कुछ भी लिखते जाओ। बॉडी एक्सिस मोर और लेस लिजर्ड लाइक, बॉडी एक्सिस लिजर्ड लाइक है। लॉन्ग टेल है, लंबा पूंछ है। नॉन न्यूमेटिक बोन्स है। न्यूमेटिक मतलब जो चिड़िया वाला बोन होता है खोखला, तो नॉन न्यूमेटिक मतलब रेप्टाइलियन बोन हो गया ना, नॉन न्यूमेटिक बोन है। वीक स्टर्नम है, मतलब जो चिड़िया लोग होता है उसमें स्टर्नम बहुत ताकतवर होता है, ब्रेस्ट बोन, तो उड़ना है ना दोनों हाथ से। प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे फाउंड इन द लिजर्ड। फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे होता है जो कि लिजर्ड का कैरेक्टर है, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रेट, बस इतना लिख दो, फ्री कॉर्डल वर्टिब्रे, बस हो गया। हैंड बियर क्लॉ, हाँ क्लॉ, फिंगर टर्मिनेट इनटू क्लॉ, अब लिखो इधर बर्ड में। फेदर ऑन बॉडी, ये बाहर से बर्ड जैसा है थोड़ा, अंदर से तो टाइली टाइप है। और 2 जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, बीक है, फेदर है, बाहर से चिड़िया टाइप है थोड़ा। 4 limbs are modified into wing, विंग है बाहर से, ठीक है। हिंड limbs are built but on a typical avian plan, हिंड limbs are built, हिंड limbs जो है वो एवियन कैरेक्टर है, हिंड लिम्ब, अच्छा हाँ दोनों हाथ। और इंटीमेट फ्यूजन ऑफ स्कल बोन एज सीन, इंटीमेट फ्यूजन ऑफ स्कल बोन में फ्यूजन हो जाता है, चिड़िया में होता है। बाय केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ रॉक्स। अच्छा एक सेकंड, इसके पास दांत है, शायद इसके पास दांत था, हाँ। जॉज आर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टीथ, देखो ये हम लोग छोड़ दिए। बोन्स आर नॉन न्यूमेटिक था ना, और उसके नीचे वीक स्टर्नम, और एक और है ये रेप्टाइल कैरेक्टर में इसके पास टीथ होता है। जॉज आर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टीथ आर सिमिलर टीथ होता है, मतलब इतना याद रख लो, सिमिलर टीथ जो भी है रेप्टिलियन कैरेक्टर में टीथ छोड़ देते हैं। ज़्यादातर रेप्टाइल है बाहर से बस वही है, और थोड़ा उसका हाथ हैंड हिंड थोड़ा चिड़िया सा है, बाकी चोंच वोच पूछ तो नहीं, पोंछ वोच पंख वंख, और थोड़ा वही पंखुड़ी उंखुड़ी, उसका उड़ने का स्टाइल, और हिंड लिम्ब जो है
फिर जो माथा में खोपड़े का वो है, क्या कहते हैं, स्कल बोन का फ्यूजन है, इंटीमेट फ्यूजन। तो ऐसे ही है बस ये। अब आता है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, द टाइम लाइन ऑफ एवोल्यूशन, एरा इपॉक, ये सब अभी आएगा, अभी अपना ये पढ़ना है। इसके बाद क्या है, एरा इपॉक पीरियड, ये सब है। फिर है इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न घोड़ा, घोड़ा है। घोड़े के बाद थोड़ा सा है, एनसीईआरटी जितना ही है, ज़्यादा नहीं दिया है मॉड्यूल में। और फिर डेटिंग है, फिर खत्म। Timeline of evolution. When the scientists first began to study and date fossils, they had to find some way to organize the different time periods from which fossils came. They divided the Earth past into three large blocks called era. तीन era है, and eras are for the chronological period, and epoch. Era, period, epoch, ठीक है, याद रखना। era, period, epoch. EPE, epe, ठीक है, EPE, era, period, epoch. EPE और एपे याद रख लो, ऐसे एरा आगे नहीं रहेगा, पीरियड बीच में, एपोक मिलियंस ऑफ ईयर। देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये पूरा याद करना है, ऑलमोस्ट पूरा याद करना है, पूरा तो नहीं, मेन चीज़ें सारी याद करनी है। जो ब्लैक में वो तो बिल्कुल ही बाय हार्ट होना चाहिए, जो ब्लैक में है ना, जो मतलब डार्कर ब्लैक, डार्कर शेड्स ऑफ ब्लैक पे जो ये सब, एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबियन, और फिर कौन कौन पहले पहले आया, किसी ओरिजिन कहाँ कहाँ हुआ, वो भी याद करना है। चलो इसको बनाया जाए या रहने दे, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले घोड़ा और ये कर लेते हैं, ठीक है, घोड़ा और डायनासोर कर लेते हैं, 2 पेज है। और फिर रिलेटिव डेटिंग कर लेते हैं, 3 छोटा छोटा, तीनों में 5-5, 10-10 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद पूरा आधा घंटा इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देंगे, ठीक है। पहले हम घोड़ा पढ़ लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न हॉर्स, इवोल्यूशन मॉडर्न हॉर्स। अच्छा, ह्यूमन का इवोल्यूशन तो परमानेंट मेमोरी में जा चुका है, ब्रेन का साइज और थोड़ा डेट वेट, वो तो बस रिवीजन थोड़ा सा है, 2 पैरा भी है। फाइलोजेनी, द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फाइलोजेनी is the ancestral history, obviously, history organism। इसका पूरा पूरा पॉइंट में पढ़ना जरूरी है। एओहिप्पस है, मीजोहिप्पस है, मेरिचिप्पस है, प्लायोहिप्पस है, इक्वस है, ठीक है, याद रखना, सब है, सब इम्पोर्टेंट है एआईओ टेस्ट के लिए ऑब्वियसली। एओहिप्पस, हाइराकोथेरियम, हाइराकोथेरियम, ठीक है, हाइराकोथेरियम भी कहते थे एओहिप्पस को। Evolution of modern horse began in the Eocene epoch. Evolution of the modern horse began in Eocene epoch, ठीक है। The first fossil named Eohippus, dawn horse, dawn मतलब dawn dusk, ठीक है, वो वाला dawn। Eohippus को dawn horse भी कहते थे। Hyracotherium, Eohippus या फिर dawn horse was found in North America। तो भाई एओहिपस मिलता था नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। This horse was about the size of a fox or a terrier dog style, only 40 centimeter high at shoulders, 40 centimeter high at the shoulders. It had a short head and neck, the forelimbs with 4 complete fingers। हाँ ये important सारे हैं, forelimbs with 4 complete fingers, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, ठीक है, and 1 splint, 4 complete fingers and 1 splint finger, ठीक है। स्प्लिंट फर्स्ट फिंगर इसका स्प्लिंट था,
2 3 4 5 सही था, फोर कंप्लीट, 4 और 4 2 3 4 5 और 1 था स्प्लिट था। और जो थर्ड लिम्ब था, एंड द थर्ड लिम्स विद 3 फंक्शनल टोज एंड 1 स्प्लिंट ऑफ फिफ्थ टो था। हिंड लिम्स, अच्छा देखो ये 4 लिम्ब था, 4 लिम्ब, 4 लिम्ब का ये था लफड़ा। अब आता है हिंड लिम्ब, आता है हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब में क्या लिखा है? हिंड लिम्ब में देखो लिखा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, स्प्लिंट्स, हाँ हिंड लिम्ब में है फर्स्ट फिंगर, ठीक है, 1 स्प्लिंट, नहीं हिंड लिम्ब में 3 फंक्शनल, कौन कौन, 2 3 4 और 1 स्प्लिंट ऑफ फिफ्थ टो, 5वें टो का स्प्लिंट, ठीक है। स्प्लिंट्स आर नॉन फंक्शनल reduced fingers and toes of horse। स्प्लिंट जो है वो reduced finger है, ठीक है, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड reduced, यूजलेस, हाँ भाई यूजलेस क्या है, नॉन फंक्शनल लिख ही दिया, तो नॉन फंक्शनल एंड reduced फिंगर एंड टो ऑफ हॉर्स, स्प्लिंट, ठीक है, एंड टो। तो आगे वाला दोनों हाथ साइड 2 3 4 5 था सही, और नीचे में खाली 2 3 4 था, ठीक है। अब क्या है इसका, ये तो था पैर का, और 40 सेंटीमीटर हाइट था, बहुत छोटा सा मतलब, और नॉर्थ अमेरिका में मिलता था, डॉन हॉर्स भी कहते थे, हायरैकोथेरियम भी, एओहिपस एओसिन इपोक में, ठीक है। अब आता है मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक, पहला 3 कैरेक्टरिस्टिक तो लिख दिया, नॉर्थ अमेरिका में मिलता था, 400 सेंटीमीटर था, इसका हाथ पैर था, और फिर ये जो चौथा है ये टीथ, इनकम्प्लीट सीमेंट, टीथ वर विद इनकम्प्लीट सीमेंट, ठीक है, सीमेंट था मगर इनकम्प्लीट। मोलर टीथ हैड नो सेरेशंस, मोलर टीथ में सेरेशंस नहीं थी, मोलर टीथ में नो सेरेशंस, सेरेशंस, और low crowned molar teeth were adapted to browse soft lush vegetation, low crowned molar teeth, low crowned molar teeth were adapted to browse soft lush vegetation, चरता था खाली, भाई ये हिप्पस, मीजोहिप्पस, ईओहिप्पस का यही था, पैर में तो 3 था काम करता, अंगूठा, और उंगली में 4 काम करता था, 2 3 4 5, और एक स्प्लिंट था ऊपर में दोनों में, नीचे में 2 2 स्प्लिंट था, और 5 5 वाला स्प्लिंट था, ठीक है। और इसका क्या था, सेरेशन नहीं था मोलर में, मोलर टीथ हैड नो सेरेशंस, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो जो जो इसका मैं ब्लैक में लिखा हुआ उसको याद कर ले अच्छे से, कहाँ एक स्प्लिंट था कहाँ 2 स्प्लिंट था ये याद रखना है, ठीक है, एक स्प्लिंट दोनों में था, फिफ्थ ऊपर में भी नीचे में भी, ये याद रखना है मेन चीज़। हिंडलिम फोरलिम दोनों में एक ही स्प्लिंट था, 1 स्प्लिंट दोनों में था, ठीक है, हिंडलिम और फोरलिम दोनों में। और बाकी फिर अपना टीथ वर विथ इनकम्प्लीट सीमेंट, इनकम्प्लीट सीमेंट था टीथ, और मोलर टीथ हैड नो सेरेशन, सेरेशन नहीं था मोलर टीथ में, लोअर क्राउंड मोलर टीथ वर अडेप्टेड टू ब्रॉज लश वेजिटेशन, सेरेशन नहीं था मोलर टीथ में, इसीलिए घास चरता था। अब आया मीजोहिप्पस, मीजोहिप्पस कहाँ बना, इंटरमीडिएट घोड़ा, पिछला वाला था डॉन घोड़ा, यह है इंटरमीडिएट घोड़ा, इंटरमीडिएट घोड़ा, evolved from Hyracotherium about 3 crore years ago during the Oligocene epoch। मुझे नहीं लगता कि इसका टाइमलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शायद, क्योंकि अगर तुम खाली मतलब इपोक के बीच का देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि उतना का पूछेगा नहीं कि 3 करोड़, कभी मिलियन, कभी करोड़ लाख, ऐसा नहीं पूछता कभी ना, कभी नहीं पूछता। तो मीजोहिप्पस है सेकंड नंबर पे, ये ओलिगोसिन इपोक में बना है,
बस इसका इतना लिख दो। अब इसका लिखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। 60 सेंटीमीटर था, 60 सेंटीमीटर हाइट था। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इयोहिपस का साइज लगभग लगभग 40 सेंटीमीटर था, जो कि मॉडर्न डे फॉक्स की तरह था, फॉक्स या फिर टेरेरियर। और ये जो 60 सेंटीमीटर हाइट मिजोहिपस है, ये शीप जितना था, शीप, आज का मॉडर्न डे शीप, भेड़। अच्छा, तो इंटरमीडिएट घोड़ा एरागोथिरम से बना है ओलिगोसीन एपोक में। और अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पड़ता है, 60 सेंटीमीटर हाइट है और 4 फीट है, हैड 3 फिंगर एंड 1 splint of the fifth finger and hind feet had the possess of 3 toes, but the middle was one no longer and the other supported the body weight. Most molar some solution। देखो हाँ, अब क्या क्या है, 4 फीट आगे वाला हाथ, 3 फिंगर और 1 स्प्लिंट ऑफ फिफ्थ फिंगर। 3 फिंगर था और 1 स्प्लिंट ऑफ fifth finger, and hind feet possessed 3 toes, but middle was ये तो था 4 फुट ना। अब हिंड फीट, हाइंड फीट में क्या है, हाइंड फीट में है पोजेस 3 टोज, 3 टो था, बीच वाला लंबा था, 3 टोज थे, मिडल वन वाज लॉन्गर। देखो इसका घुटना में, इसका पैर में घट गया, देख रहे हो ना। हाँ, मिडिल वाला मोशन, मोलर टीथ हैड सम सेरेशंस। अब देखो इसका दांत में कुछ तो बदलाव आया है। चारों पॉइंट फिर से यही है, 1 2 3, इधर 3 ही पॉइंट है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया कहाँ था, ठीक है, कोई ज़रूरत भी नहीं, नॉर्थ अमेरिका में था, बस इयोहिपस इतना याद रखना। इसका क्यों याद रखे जब दिया ही नहीं है ना। मोलर टीथ हैड सम सेरेशंस, ठीक है। नाउ आई फीलिंग वेरी टायर्ड, बहुत थकान सा हो रहा है। मेरी चिप्पस नंबर 3, मेरी चिप्पस। लेट मी ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, यस, लेट्स गो the heading, मेरी चिप्पस, मेरी चिप्पस, मेरी चिप्पस द रूमिनेटिंग हॉर्स। इसको कहेंगे, इंटरमीडिएट घोड़ा था और उसके ऊपर क्या था, इंटरमीडिएट के पहले डॉन घोड़ा, डॉन घोड़ा, फिर इंटरमीडिएट घोड़ा, फिर रूमिनेटिंग घोड़ा, चरने वाला रूमिनेटिंग घोड़ा। फ्रॉम द मीजोहिपस इन द मियोसिन इपोक। अच्छा ये मियोसिन, ठीक है, एओसिन, ओलिगोसिन या मियोसिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, मतलब याद रहेगा उतना तो इम्पोर्टेंट तो है। 2 करोड़ ईयर्स अगो इट वाज साइज ऑफ, अच्छा लिख ही देता है, 3 करोड़ 2 करोड़ में क्या ही जा रहा है, बस इतना लिख दो, 3 करोड़ 3 CR वाई है, ये लिख दो, 2 CR वाई है, बहुत है इतना, बड़ी ज्ञान हो गया। हाँ, इट वॉज अ स्मॉल पोनी, पहले लिखो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर लिखो स्मॉल पोनी, खच्चर, छोटा वाला। इट हैड अ लॉन्गर नेक, भाई साहब विकसित हो रहे हैं। इट्स 4 and hind limbs had 3 fingers and 3 toes. Middle finger, its fore and hind limb have 3 fingers and 3 toes. Middle finger of toe being longer than others. Middle finger and toe, अच्छा middle finger and toe being longer than, अच्छा middle finger भी और middle toe भी, अच्छा there was no splint। ये एकदम ही सिमेट्रिकल हो गया यार, इसके पास हिंड लिम्ब है, फोर लिम्ब है, ठीक है, और दोनों में ही 3 फिंगर है, दोनों में ही 3 फिंगर है, हिंड लिम्ब में भी फोर लिम्ब में भी, दोनों में 3 फिंगर 3 फिंगर, 3 फिंगर 3 फिंगर, 3 फिंगर 3 फिंगर और 3 टो, ठीक है। मिडल टो लॉन्गर, मिडल टो लॉन्गर, मिडल फिंगर
longer, ठीक है। देयर वॉज नो स्प्लिंट, स्प्लिंट नहीं था, कोई स्प्लिंट ही नहीं था, नो स्प्लिंट। तो पूछ दे कि पहला घोड़ा विदाउट एनी स्प्लिंट, तो मेरी चिपस लिखना है। टीथ वर लॉन्गर विद सीमेंट, टीथ लॉन्ग, ये पहला घोड़ा जैसा लग रहा है। टीथ लॉन्गर विद सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये पहला है जिसमें सीमेंट भी शायद आया है। मोलर टीथ हैड वेल डेवलप्ड सेरेशंस, मोलर टीथ हैड वेल डेवलप्ड सेरेशंस, सेरेशंस भी आ गए इसके पास, तो चना चबा सकता है घोड़ा अपना। मोलर टीथ हैड वेल डेवलप्ड सेरेशंस, वेल डेवलप्ड सेरेशंस, ठीक है। अब आया है दो वो लास्ट का, प्लायोहिपस एंड इक्वियस। रह गया डायनासोर का एक पेज, फिर डेटिंग का एक पेज, और फिर आएगा होमोलोगस एनालोगस। मेरी चिपस के पास स्प्लिंट नहीं था। अब आता है प्लायोहिपस नंबर 4 पे। तो ये था मियोसिन में ना, मायोसिन में मतलब। सबसे पहले था कौन सा था सबसे पहले? सबसे पहले था क्या था, इयोसिन, फिर था ओलिगोसिन, फिर था मायोसिन, और अब है प्लायोसिन। अच्छा, प्लायोहिपस को तो याद रखना आसान हुआ फिर। प्लायोसिन हॉर्स भी कहते हैं, प्लायोहिपस या फिर प्लायोसिन हॉर्स, प्लायोसिन हॉर्स, प्लायोसिन घोड़ा। तो कौन कौन घोड़ा था? डॉन घोड़ा सबसे पहला, फिर था इंटरमीडिएट घोड़ा, फिर इंटरमीडिएट घोड़ा के बाद कौन सा घोड़ा आया सबसे पहले? रूमिनेटिंग घोड़ा, रूमिनेटिंग चरने वाला घोड़ा, हाँ सही बात है। भाग भी सकता था क्योंकि उसको बेटर स्टेबिलिटी मिला, सिमेट्रिकल शरीर हो गया, आगे भी पीछे भी फिंगर और टो, है ना। तो रूमिनेटिंग घोड़ा, और रूमिनेटिंग घोड़ा हो गया प्लायोसिन घोड़ा। Evolved from Merychippus in Pliocene epoch, but 1 करोड़ ईयर्स अगो। तो यही है। अरे कितना आसान है यार, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, बहुत आसान है ये। डेट्स याद करना आसान है। ये सब साइज ऑफ द मॉडर्न पोनी, नैका पोनी जो है आज का, साइज ऑफ मॉडर्न पोनी। शॉर्ट पोनी था पहला वाला, क्या था? फॉक्स या फिर टेरियर जो भी है। दूसरा वाला क्या था? शीप था। 60 था, फिर 40 था, फिर 60 था, फिर 100 हुआ, फिर 120 हो गया। ये मॉडर्न पोनी 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 मीटर के आसपास हो जाएगा अगला बारी तो। अच्छा, शोल्डर सीज फॉर हिंड हैड 1 कंप्लीट फिंगर एंड 1 कंप्लीट टो, and 1 complete finger, 1 complete toe, and 2 splints behind, hidden beneath skin. Oh, Platypus is therefore referred to as the first one-toed घोड़ा। नाइस। चलो इसका पैर का वर्णन किया जाए बढ़िया से। Its four and hind limb had complete 1 complete finger and 1 complete toe, and 2 splint hidden। अच्छा, दोनों सेम, फोर लिम्ब और हिडन लिम्ब, हाइंड लिम्ब, दोनों एक जैसा है, डिट्टो। क्या है? 1 फिंगर एंड 2 स्प्लिंट्स, और 1 टो एंड 2 स्प्लिंट्स। और ये जो चारों का चारों स्प्लिंट, मतलब जो भी है स्प्लिंट जितना भी है इसके पैर में, सब का सब, ईच एंड एवरी, सब का सब स्प्लिंट बीनीथ द स्किन है, द स्किन। देयरफॉर फर्स्ट वन-टोड घोड़ा, ठीक है। और क्या है? मोलर टीथ विद वेल डेवलप्ड सीमेंट, एकदम सीमेंटिंग बढ़ रहा है और सेरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। मोलर टीथ, लंबाई बढ़ रहा है, सिमेट्रिकल होता जा रहा है पैर, पैर का हूफ ऑब्वियसली, साइज बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, गला बढ़ रहा है, और मोलर टीथ सीमेंटिंग हो रहा है, और सेरेशन आ रहा है। मोलर टीथ वर लॉन्ग विद वेल डेवलप्ड सीमेंट एंड सेरेशंस, ठीक है।
Teeth were adapted for eating grass. Teeth adapted for grass. चरने adapted for grass. ठीक है. हालांकि रूमिनेटिंग घोड़ा कौन सा है अपना, इसके पीछे वाला, ठीक है, याद रखना. तो चारों घोड़ा का नाम एक बार फिर से हो जाए. सबसे पहले ईओहिपस, फिर है मीजोहिपस, फिर है अपना मेरिचिपस, और फिर है अपना प्लायोहिपस. इक्वस है, इक्वस को लिखते नहीं, इक्वस को सही याद करने की कोशिश करते हैं. मॉडर्न हॉर्स विच अरोज इन द प्लायोहिपस इन द प्लेस्टोसीन इपॉक, ठीक है, प्लायोसीन फिर प्लेस्टोसीन इपॉक, ठीक है. It is around 9 to 10 lakh years ago in the North America and later spread throughout the world except Australia. Australia में घोड़ा नहीं है, ठीक है. It is about 150 सेंटीमीटर height up to the shoulders, मतलब बहुत लंबा है ये. The long head and long neck. Each foreign hand limb model has one finger and one toe and two splints. मतलब प्लायोहिपस और इक्वस का पैर सेम है, डिट्टो. वन फिंगर वन टो और दोनों में दो दो स्प्लिंट, ठीक है, हैंड लिम फोर लिम में. तो मतलब प्लायोहिपस और इक्वस का सेम है. और द क्राउन्स ऑफ द मोलर टीथ आर इलोंगेटेड एंड इनैमल्ड रिजेस एंड आर हाईली सुटेबल फॉर ग्राइंडिंग. चना चबाता ये है, ध्यान देने का बात ये है. इक्वस लिख ही लेते हैं हम लोग. मॉडर्न हॉर्स, मॉडर्न घोड़ा. देखो सबसे पहले तो अपना डाउन घोड़ा था, फिर था इंटरमीडिएट घोड़ा, फिर था अपना इंटरमीडिएट घोड़ा के बाद क्या था, मेरिचिपस को क्या कहते हैं. मेरिचिपस कौन सा घोड़ा था, रूमिनेटिंग घोड़ा. रूमिनेटिंग घोड़ा के बाद प्लायोसीन घोड़ा, और प्लायोसीन घोड़ा के बाद मॉडर्न घोड़ा. इक्वस और प्लायोहिपस बहुत सेम है. तो एक कब बना, प्लेस्टोसीन, और वो बना था प्लायोसीन, और ये बना प्लेस्टोसीन, ठीक है. ये इपॉक याद रखना है, प्लेयोसीन इपॉक और प्लाइस्टोसीन इपॉक. तो 9 से 10 लाख ईयर्स हो गए. और क्या, घोड़ा का पैर बिल्कुल ही सेम प्लाइस्टोसीन के साथ, प्लायोहिपस के साथ, सॉरी. और बस वही है. अभी इसका मुंह पे लिखना है, नॉर्थ अमेरिका. अच्छा, पहला घोड़ा भी कहाँ बना था, नॉर्थ अमेरिका. तो पहला घोड़ा और अंतिम घोड़ा दोनों नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है. और फिर स्प्रेड ऑफ वर्ल्ड टू द वर्ल्ड, और ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में घोड़ा ही नहीं गया, ठीक है. ठीक है भैया, सही है. अब क्या है, प्लेस्टोसीन 150 सेंटीमीटर, ये भी है 150 सेंटीमीटर. और इसका फुट में लिख दो, लेग का पूरा लिख दो, सेम एज अबव, सेम एज प्लायोहिपस. क्या कहते हैं, पैर, लेग, ठीक है. अब लिख दो इसका बस मुंह का. Crowns of molar teeth are elongated. Crowns are elongated. Enamel ridges, ridge highly suitable for grinding. हो गया, खत्म भैया. तो जब इसका क्या क्या इवोल्यूशन ऑफ घोड़ा में क्या क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक सिंप्लीफाई करना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले लिखेंगे अपन कि मतलब जनरल इंक्रीज इन द साइज हो रहा है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ टोज हो रहा है, हाँ. लेंथनिंग ऑफ टोज वाज रिटेन्ड, हाँ हाँ हाँ. लेंथनिंग ऑफ लिम्स इन जनरल, ये भी सही है. इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन स्पेशली सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं था. इन घोड़ा लिख दो, इन हॉर्स enlargement of brain occurring, enlargement of brain especially brain, और फिर ब्रैकेट में cerebrum occurring, ठीक है. इंक्रीजिंग हाइट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोलर, प्रीमोलर रिजेंबल मोलर्स. अच्छा, प्रीमोलर से मोलर्स को रिप्रेजेंट करने लगा लास्ट जाते जाते. चलो सही है भैया. व्हाट इज फाइलोजेनी, किसी के एंसेस्टर का पढ़ाई लिखाई, फाइलोजेनी उसी को कहते हैं, ठीक है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या समझते हो भाई, मैं क्या समझता हूँ. लेट्स सी इसका आंसर क्या है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ट्राई होगा 12. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ रॉक स्ट्रेटा at a location have not been disturbed, the slowest atom of the, okay, प्रिंसिपल सुपर वाला उसके ऊपर आता जाता है और आगे वाला नया होता जाता है. तो ये सारे टर्म्स हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिस से याद हो जाएगा सब.
ऐसा कोई स्पेशल टर्म तो है नहीं, बस 2 बार और पढ़ना है, सब याद हो जाएगा। हालांकि याद तो हो ही चुका है, अब क्या याद करना। डायनासोर्स गॉट एक्सटेंड व्हेन द स्केलेटन्स ऑफ एरियाज, या डायनासोर डेटिंग, और वो कल करूँगा, ठीक है, मतलब अभी करूँगा थोड़ा देर खा के, ठीक है।